So, welcome back class into the second video of your science chapter, which was coal and petroleum. So, we were discussing the chapter coal and petroleum. This is the name of the chapter, coal and petroleum. And this is your second class. In last class we have already discussed about some concepts of fossil fuels and many more. In this class we have to discuss the first type of fossil fuel, which is coal. I have defined the coal. What is coal? Coal is what? A black substance that consists of carbon only. Okay, coal is what? A black substance, black rocky substance which consists of carbon. So that thing we have discussed in our previous class. Today we are going to discuss the types of coal. Types of coal. So we have three types of coal. So you just have to write the three types. We don't have to define it. What is the first type? First type is lignite. लिग्नाइट कंसिस्ट ऑफ 25% कार्बन. लिग्नाइट के अंदर 25% कार्बन होता है. ये हमारा फर्स्ट टाइप है. सेकेंड टाइप इज बाई ट्यूमिनस एंड इट कंसिस्ट ऑफ 45% कार्बन. एंड इसके अंदर 45% कार्बन प्रेजेंट होता है. द थर्ड टाइप इज एंथ्रासाइट. थर्ड टाइप इज एंथ्रासाइट एंड इट कंसिस्ट ऑफ 85% कार्बन. So these are the three types of coal. You just have to remember the three types. Not we don't have to define them. And you have to remember the percentage of carbon in each type. So the best, you can say the best type is anthracite because it has most percentage of carbon, and hence it is the best coal because it acts as very good fuel. Now write a point about coal. When coal is heated in air, it burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो जब हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है? वो हवा के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंस में बर्न होगा, एंड जब वो बर्न होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगा. सो दिस इज अ पॉइंट अबाउट कोल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग लाइक कोक, कोल टार एंड कोल गैस. सो वी विल डिस्कस दैट वन बाय वन. Write this first, then we will move forward. Okay, so coming forward to the next part, which is coke. What is coke? So just we have to know that what is actually coke. So write the point. The coke, the coal is broken down into simpler substances upon heating.
कोल को हीट करके उसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट करने का मतलब उसे ब्रेक डाउन करके हम उसे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। कैसे? हीट करके। ओके, अपॉन हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, एंड ये इन एब्सेंस ऑफ एयर होगा, बिकॉज अगर आप इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर के प्रेजेंस में अगर आप इसे हीट करते हो देन कोल बर्न हो जाएगा एंड वो फिर ख़त्म हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ एयर, in absence of air, yeah, this process is called डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव, should be I there, yeah, destructive distillation। तो एक्चुअली हमने अभी किया क्या? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को डिफाइन किया। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है? ये कोल के ऊपर किया जाता है। कोल को हम इन एब्सेंस ऑफ एयर जब हीट करेंगे तो वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा। कोल को इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा। अगर आप एयर के साथ, एयर के प्रेजेंस में हीट करोगे तो कोल बर्न हो जाएगा। इसीलिए हम उसे इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं ताकि वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एंड फिर जब वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे हमें नए सिंपलर सब्सटेंसेस मिलेंगे, विच इज़ कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ओके, so we will get coke after destructive distillation. So write this. After destructive distillation, the solid residue means solid waste जो बच गया, that is coke. Solid residue left is called, उसे हम बोलते हैं कोक। उसे क्या बोलते हैं? कोक। तो सॉलिड रेसिड्यू जो बच जाता है हम उसे बोलते हैं कोक। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोक, दिस वन। नाउ after coke we have to define coal tar. What is coal tar? So coal tar is a jelly oily black substance. Okay, so write this. It is thick black oily liquid with an unpleasant smell, which is obtained after destructive distillation of coal. तो कोल टार क्या है? कोल टार थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड है जिसका स्मेल बहुत अनप्लीजेंट होता है, एंड विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये भी हमें कहाँ से मिला है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिला था कोक, एंड सेकेंड प्रोडक्ट मिला हमें कोल टार, एंड वी विल गेट वन मोर प्रोडक्ट विच इज़ कोल गैस। सो नोट दिस थिंग, देन आई विल मूव फॉरवर्ड।
Okay. So the next product after destructive distillation is coal gas. So it is obtained on destructive distillation destructive distillation of कोल। ये कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है। या सो यू हैव टू राइट दिस थिंग अबाउट ओनली। सो कोल गैस क्या होता है, ये भी हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एक गैस मिलता है, दैट इज कॉल्ड coal gas. Now after we have discussed all about coal and destructive distillation of coal and products we are getting after that, now we will come to our next heading. ये हमारा next heading होगा जो है पेट्रोलियम। what is petroleum? So right, petroleum is viscous dark colored oil which is found which is found under the surface of earth और सीबेड। तो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम भी बिल्कुल कोल की तरह ही सिमिलर प्रोडक्ट है। ये भी अर्थ के नीचे दबा हुआ हमें मिलता है एंड ये अर्थ के नीचे भी हो सकता है या सी के नीचे भी हो सकता है। सो वी कॉल सी बेड। व्हाट इज सी बेड? जब सी का जो तल होता है, सी का जो यू कैन से जहाँ पे सी ख़त्म होता है, जहाँ पे यू कैन से वहाँ सी के अंदर जब जाओगे तो डीपनेस जहाँ ख़त्म हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड सी बेड। नाउ अब ये पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है? सो वी विल आई विल राइट अ पॉइंट अबाउट फॉर्मेशन। सो राइट हियर, ये पेट्रोलियम का ही पार्ट है। ओके, फॉर्मेशन, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होगा? ओके, सो फॉर्मेशन, राइट दिस, द फॉर्मेशन of petroleum is very similar to the formation of coal। कोल के फॉर्मेशन के बिल्कुल सिमिलर पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन होता है। सो इसे मैं डिटेल में बताऊंगा। फर्स्ट यू राइट दिस ऑल, देन आई एम राइट अबाउट द फॉर्मेशन इन डिटेल। Thousands of years ago, unlimited amount of
sea animals and plants. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी कि काफ़ी हज़ारों साल पहले बहुत अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सी एनिमल्स एंड प्लांट्स सी के बेड के नीचे दब गए थे. ओके, buried अंडर दी सी बेड. कहाँ दब गए थे? सी बेड के नीचे. एंड on high temperature and pressure, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ऑन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो गए, दे कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. वो कन्वर्ट हो गए किस में? पेट्रोलियम में. ओके, तो फॉर्मेशन कैसे हुआ? हज़ारों साल पहले बहुत अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सी एनिमल्स एंड प्लांट्स वो क्या हो गया? ब्यूरिड हो गए अंडर सी बेड. सी बेड के नीचे क्या हो गए? दब गए. एंड फिर जब आप ज़मीन के नीचे रहोगे तो ऑब्वियसली वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में वो कन्वर्ट हो गया किस में? पेट्रोलियम में. So this was the formation of petroleum. Rest of the part I will discuss in next class. Thank you.